Slide is visible, and I think I'm audible. This Yes, is sir. You are audible Bhartiya. and slide is very much visible. Now this is the slide. I'm making it a practice so that I can also know, I can keep on knowing and writing one of the languages. Though I should know at least two languages besides English. I must know two languages. Rajiv Gandhi has brought a very good formula, three language formula. We did not follow. Good number of problem could have been solved had the three language formula been adopted. So I started writing so that at least I do not forget. Besides English, I do not forget writing Hindi, and also because good number of students and good number of teachers do serve those students who are from non-English medium background. सो भारतीय न्याय संहिता, नए कानूनों का भारतीय नामकरण, क्या विवाद है इसका? राज्य के विरुद्ध अपराध में राजद्रोह की क्या स्थिति है? राजद्रोह से देशद्रोह तक का सफर किस प्रकार का है, जो अध्याय 7 में है? और आतंकवादी कृत्य जिसके बारे में 113 में बताया गया है भारतीय न्याय संहिता में, वो क्या है? इंडियन पेनल कोड का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है 2023. इट हैज बीन चेंज्ड. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 का नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है 2023. इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदल करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा गया 2023. इसको पहले भी हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही कहते थे, पर अब पूरी तरह से इसका नाम भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है. मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा कि किस प्रकार की कमेटी बनी थी, क्योंकि आज एजेंडा पे ये नहीं है. केवल इतना ही कह सकता हूं कि 2020 में इसको लेकर कार्रवाई आरंभ हुई, पर इसको लेकर बदलाव के बारे में, जो परिवर्तन के बारे में जो बात हुई थी, वह 1997 में ही लॉ कमीशन की रिपोर्ट में की गई थी कि आईपीसी में एक पूरा बदलाव करना है. आईपीसी इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड completely, and the law commission report in 1997 already submitted a report. Then Malimatha committee reports were there that also suggested certain reforms. Based on these, certain reforms were brought in. It is not that the reforms were not brought in. 2005, 2012, 13, 2018 reforms were brought in, but then it was thought that a comprehensive reform should be done. It was an intellectual decision, it was also a type of political decision. It was a mix of both, because number one, it was required that a comprehensive changes should be made, but it was also a political decision because the government wanted to show the country that they are making great changes. Unfortunately, changes are not great. Now, so there were committees, various committees were made. Fortunately, I was a part of that committee. I was not asked to discuss something on Indian Penal Code, that is my core area. I was sent a question, sent something to discuss on FIR, which I have submitted to incorporate Arnesh Kumar. So committees have deliberated, they have done great work. I think little more was expected from these all committees. Parliamentary committee has also submitted the report. The good thing was that committee has immediately, very quickly submitted the report. That is the very good thing. नहीं तो हमारे देश में समितियां बनती हैं और सो जाती हैं, उसको जगाने के लिए नई कमेटी बनती है, फिर वो भी सो जाती है और रिपोर्ट आती रहती है. पर ये कमेटी बहुत अच्छी, बहुत जल्दी इन्होंने रिपोर्ट दी, अच्छी बात है. पर इसका क्रिटिसिज्म मेरी तरफ से ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत ही कम लोगों से संपर्क किया, शायद 12 लोगों से. उनकी रिपोर्ट में 12 लोगों के नाम हैं. आप ढूंढ सकते हैं कितने उसमें अध्यापक हैं, कितने वकील हैं. 2-3 अध्यापक हैं हार्डली. पार्लियामेंट्री कमेटी ने जितना उसको बेहतर तरीके से और करना चाहिए था, इतना बड़ा सुधार आप करने वाले थे, वो नहीं कर पाए. लेकिन ठीक है, अच्छी बात यह है कि उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की. पार्लियामेंट्री कमेटी ने ओपन भी नहीं किया अपनी कि हम इसको सबमिट कर सकें. मैंने उनको मेल किया कि आप अगर चाहें तो मैं भी कुछ प्रस्तुत कर सकता हूं, क्योंकि जब बिल प्रेजेंट हुआ था, व्हेन द बिल वाज प्रेजेंटेड, I had already deliberated at least in 2, 3, 4 universities and uploaded on my YouTube channel that you can see, that is Anurag Deep ILI. You can surf, you can find a number of videos, around 62 videos on various legal issues are there. But kindly note, they are not quick videos. They are around 1 hour video, deliberated like these type of intellectual gathering with the august and intellectual people. पर उन्होंने
मुझे बुलाया नहीं। जब बड़े बड़े लोगों को नहीं बुलाया तो मेरी क्या हस्ती थी, मुझे क्यों बुलाते वो। खैर, लेकिन ये कहने का मतलब नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं किया। मेहनत किया, जरूर मेहनत किया, पर शायद बेहतर कर सकते थे। ये वैसा ही है जैसे हमारे घर में बच्चा मेहनत करता है, उसको 93% 4% नंबर आता है, और हम सोचते हैं कि शायद बच्चे ने मेहनत किया होता तो और अच्छा नंबर आता। जो उसके पास मेहनत करने का समय भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, अवसर भी था, अवकाश भी था, मौका भी था, दस्तूर भी था। ये सीखने की बात है कि इन सभी कमेटियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन इसका कभी भी ये अर्थ नहीं है कि इन कमेटियों ने काम नहीं किया। बहुत मेहनत की इन लोगों ने, और इसके लिए इनको मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सरकार ने ये कानून पारित कर दिया 2023 के दिसंबर में। एक ही उस पर लिमिटेशन थी कि विपक्ष के सदस्य इसमें नहीं थे। ऑपोजिशन मेंबर्स वे आर सस्पेंडेड फॉर देयर इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर। उनको उस दौरान कम से कम आना चाहिए था कि इतना बड़ा कानून परिवर्तन हो रहा है, लेट अस कम आउट। गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए था उनके पास तक, चलो भाई गिले शिकवे भूल जाओ, आ जाओ, इतना बड़ा चेंज हम कर रहे हैं, आकर हमें बताओ क्या गड़बड़ी है। पर दोनों अपने जिद में खड़े रहे, और जब दो लोग जिद में पड़े रहते हैं तो देश का भला नहीं होता, देश का भला नहीं होता। यह कानून फिर पारित हुआ। इसका यह मतलब नहीं है कि विपक्ष के सदस्य नहीं थे। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, द सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट contained a number of opposition members, and not one, many opposition members. So it is not correct to say that opposition representation was not there. Of course, in the direct parliament it was not there, but there were many others parliamentary members, opposition members. They could have represented it. They have also not done very well. Ultimately, law was passed, and 1st July 2024 midnight, the law was enforced. I must appreciate the commitment of this government, that they wanted to do and they have done it. I had some apprehension that probably they will not do, but that is the USP of this government, that good or bad, that once they decide, they do it. And this is one of the very good sign for a democratic country, that at least there is a government who takes very strong and strict decision and sticks to their schedule. Final question for this PPT, this slide is, क्या पुराना कानून जारी रहेगा? Of course जारी रहेगा। क्या दोनों कानून जारी रहेंगे? दोनों कानून जारी रहेंगे। आंसर यस है। 30-12 बजे तक जितनी भी घटना घट गई है वो सब के ऊपर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। इंडियन पेनल कोड शैल बी एप्लीकेबल। यदि 30 जून के पहले घटना घटी है और एफआईआर बाद में हुई है, मान लीजिए कि 24 जून को घटना घट गई है और एफआईआर 5 जुलाई को दर्ज हुई है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मिसिंग हो गया था मई में, सपोज ए पर्सन गॉट मिसिंग इन मई, एंड इन जुलाई और अगस्त a dead body was found in a very depleted position, कंकाल उसका मिल गया और डीएनए के बाद पाया गया कि वही आदमी है और मर्डर किया गया। उसका मर्डर केस दर्ज होगा 24 जुलाई को आईपीसी में। क्यों? क्योंकि घटना पहले की है। सीआरपीसी और एविडेंस का क्या होगा, इसको लेकर कुछ डिस्प्यूट था, लेकिन हाई कोर्ट्स ने कह दिया है कि अपील जितनी होगी उनके ऊपर नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी। जितनी अपील होंगी, पर पुराने जो मामले हैं उनके ऊपर सीआरपीसी जारी रहेगी। रिफॉर्म्स क्यों होना चाहिए, चेंज क्यों होना चाहिए, इसको लेकर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई फायदा भी अब नहीं है। यह एकेडमिक महत्व का विषय है, लेकिन मैं 2 लाइन जरूर कहूंगा कि परिवर्तन तो जरूर होना चाहिए था। थॉमस जेफरसन ने कहा है, यू कैन नॉट कंपेल द पर्सन टू वियर द सेम कोट विच वॉज फिट टू हिम व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। परिवर्तन होता रहा, बीच बीच में कानून तो बदलते रहे, पर एक सांगोपांग परिवर्तन, एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस की बहुत जरूरत थी, जो सरकार ने संसद के माध्यम से किया। यह अच्छी बात है। पहले भी परिवर्तन होना चाहिए था, पता नहीं पहले क्यों नहीं किया गया। वो कहते हैं ना कि तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, किसी के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बैठे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो बहुत दिन से संशोधन की जरूरत थी, संशोधन होने चाहिए थे। कई रिकमेंडेशन आई थी, कई रिपोर्ट्स आई थी, लॉ कमीशन ने कहा था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था, और भी बहुत सारी समितियों ने कहा था कि कानून बदलो, कानून बदलो, कानून बदलो। तो सरकार ने कानून बदला। हाँ, कानून में जो बदलाव आना चाहिए था कि वो एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करता, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद कोई रिवॉल्यूशन क्रिएट करेगा, मुझे
बिल्कुल डाउट है कि ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं करेगा। रिवॉल्यूशनरी प्रोविजन तो है कुछ, पर ये रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे। तारीख पे तारीख की जो दुनिया बनी हुई है हमारी, जो एक आम आदमी एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में जाता है और उसकी सारे संवैधानिक अधिकार, उसके जो सारे अधिकार जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में है, वो वहीं पर दम तोड़ देते हैं जब उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। वह स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। जरूर एफआईआर बदलने के लिए, एफआईआर लिखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, नया सिस्टम किया गया है, ये अच्छी बात है, इससे चीज़ें बदलेगी, पर बिल्कुल रिवॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। आईपीसी में कन्विक्शन बहुत तेजी से होने लगेंगे और जो लोग इस तरह फंसाए जा रहे हैं किसी न किसी कानून में, 498 जैसे केसेस ले लें, वो नहीं होंगे। मुझे डाउट है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसा नहीं किया गया है, कुछ बदलाव हुआ है, ये बदलाव सही दिशा में है। प्रोविजंस रिवॉल्यूशनरी हैं, पर रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। बहुत कुछ आगे करने की ज़रूरत है, उम्मीद है कि सरकार करेगी, पर इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार ने जो काम किया अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा काम है, सही दिशा में गाड़ी गई है, गाड़ी आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि आगे संशोधन होंगे और देश हमारा 2047 तक एक विकसित देश के रूप में बढ़ सकेगा, पर तभी जबकि सरकार, संसद, पुलिस, प्रिजन अथॉरिटी, जुडिशियल ऑफिसर्स, लॉ टीचर, लॉ स्टूडेंट, वकील सब मिलकर इस दिशा में जोर शोर से काम करेंगे, जिसकी लीड एक्चुअली संसद को लेनी पड़ेगी और भारतीय और जो कार्यपालिका को लेनी पड़ेगी। सो माय फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट इट इज ए गुड थिंग, very good thing has been done, but don't think a revolution will come within 10 years unless many things are changed, because many things have not been changed. Now coming to this issue of language, see, the name of the Sanhita, name of the law is Bharatiya Nyaya Sanhita and not Indian Justice Code. Justice Code. The name of CRPC is not भारतीय इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Why this is? There are both arguments. There are both types of argument. Let me go with the arguments first. The government says through parliament that it is a mark of decolonization. We are trying to throw out the rob of the English legacy. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। फ्रांस ने 25 साल पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया था। फ्रांस वो जगह है जहां पर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी की बात की जाती है। लिबर्टी सबके लिए, सोच की भी लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, हम कई भाषा के लोग होंगे, पर फ्रैटर्निटी की बात फ्रांस से निकल कर आई है। पर फ्रांस ने बहुत पहले ही कानून बना दिया और कहा कि अंग्रेजी शब्दों को निकाल के हमें बाहर करना है, क्योंकि अंग्रेजी शब्दों के कारण हमारी अपनी जो संस्कृति है, हमारे अपने संस्कार है, हमारी अपनी जो भाषा है, वो खतरे में पड़ रही है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है बहुत बड़ी संख्या में जो स्थानीय भाषाएं हैं वो खत्म हो रही हैं, हफ्ते के हिसाब से खत्म हो जा रही हैं स्थानीय भाषाएं। क्यों? क्योंकि जो दूसरी भाषाएं हैं वो डोमिनेट कर जा रही है। सभी भाषाओं को बराबर में रहने का अधिकार है। तो ये जो है अमित शाह साहब ने कहा कि डीकोलोनाइजेशन कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि डीकोलोनाइजेशन की एक शुरुआत, इट इज जस्ट ए बिगिनिंग हैज नॉट बीन मेड नाउ। पहले भी हुई है बिगिनिंग तो शुरुआत में ही हुई है और पहले भी होना चाहिए था। 1947 वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, 1950 we became republic. We should have made some changes which has not been done due to various reasons. बाद में हमने बदलाव किया, कई बदलाव किए। मद्रास का नाम चेन्नई किया, बॉम्बे का नाम मुंबई किया। ये नाम के जो बदलाव हैं, इनसे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाता जस्टिस को लेकर। ऐसा नहीं कि जस्टिस जल्दी मिलने लगी, ऐसा नहीं कि मद्रास और को चेन्नई कर देने से वहाँ भुखमरी कम हो गई, लेकिन एक बदलाव है, बदलाव की शुरुआत है। डीकोलोनाइजेशन का एक इफर्ट है ये। भारतीय न्याय संहिता अपना नाम होगा, अपने देश का नाम होगा। काउंटर आर्गुमेंट्स क्या हैं? 2 काउंटर आर्गुमेंट है, कई लोगों ने किया है, लेकिन जिस सम्मेलन की बात प्रोफेसर अनुपम सर कर रहे थे, जिसमें जाने का मुझे और प्रोफेसर वागेश्वरी मैडम को मौका मिला था,
उसमें मुझे आश्चर्य हुआ कि चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस साहब ने, सदाशिवम साहब ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये जो नाम है ये तो जो है ऐसा लग रहा है कि ये नाम ठीक नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, उनका इंटेंशन था कि हिंदी का नाम को थोप दिया गया है। और दूसरा उनका तर्क था कि बोलने में दिक्कत आ रही है, बोले कैसे हम। व्हाट ए फनी आर्गुमेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। You are not a chief, no, you are not justice, you are called as a former chief justice of India. You are for India, you are not for one language or two language. You cannot say just अभी तो भाई भाषा समझ में नहीं आ रही, हम बोल नहीं पा रहे हैं। अभी मैं उदाहरण दूंगा आपको, बोल नहीं पा रहे हैं उनके आर्गुमेंट को ले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आर्गुमेंट को ले, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आर्गुमेंट को, which I think was completely unwarranted for such a person who has such a responsible position, जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनको कम से कम ऐसा आर्गुमेंट नहीं देना चाहिए था। ही शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल। आइए पहले देखते हैं ये भारतीय न्याय संहिता क्या नॉर्थ बेल्ट के लोगों ने साउथ के लोगों पे, बंगाल के लोगों पे, उड़ीसा के लोगों पे, महाराष्ट्र के लोगों पे कोई हिंदी भाषा थोपती है। ये इसलिए कह रहे हैं, इनको कहने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। दे आर द पीपुल हु आर नॉट इन्फॉर्म्ड, they are not well informed. I will just tell you why they are not well informed. Second are completely political people. They are trying to get brownie points, as it is always said in politics. भाषा की राजनीति कर करके ही वो अपने राज्यों में आगे बढ़ते हैं। वो भाषा को अक्सर ही दिखाते हैं कि भाषा जैसे उनकी दुश्मन है और उसके लिए वो भिन्न भिन्न तरह के हथकंडे अपनाते हैं। यही बात तमिलनाडु ने किया है, तमिलनाडु के जो नेताओं ने किया है, तमिलनाडु के नेताओं ने किया है और कहा, वो वहाँ के मुख्यमंत्री और लोगों ने कहा कि ये तो हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। कंप्लीटली रॉन्ग। आई टेल यू व्हाई दिस इज सो। आई ट्राई टू डू सम रिसर्च वर्क। क्या भारतीय वर्ड बंगला में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? आप में से कोई बंगाल से हो तो सोच के मुझे बताए और लिखे वो अपने चैट बॉक्स पे, क्या भारतीय शब्द बंगला में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? क्या न्याय शब्द पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? क्या संहिता शब्द पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है बंगला में? क्या तेलुगु में भारतीय शब्द पाया जाता है? और मुझे मेरे दोस्तों ने बताया जो उस क्षेत्र से है, तेलुगु से है, उनका भारथा, हम प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं पर हम भारथा कहते हैं भारतीय को। बिल्कुल पाया जाता है। भारतीय युदु भी कहते हैं, इंडियन भी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या तमिल में भारतीय शब्द है? यस, भारतीय शब्द है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, लेकिन भारतीय शब्द तो बोलते हैं हम। मलयालम में भारतीय शब्द है? यस है, मलयालम में भारतीय शब्द बोला जाता है। भारतीय शब्द क्या कन्नड़ में भारतीय शब्द बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। क्या मराठी में बोला जाता है? मैं मुंबई में गया, मैंने पूछा लोगों से और उन्होंने कहा हाँ भारतीय शब्द तो बोला जाता है। हम भारतीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, महाराष्ट्री लोग इस्तेमाल करते हैं, अपनी भाषा में करते हैं भारतीय शब्द। उर्दू में हिंदुस्तानी और भारतीय दोनों शब्द का इस्तेमाल होता है। नेपाली में भी होता है भारतीय। भाई लग रहा है कि देश की शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जहां भारतीय शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो है ये दक्षिण भारत के हमारे मित्रों, हमारे भाई बंधुओं से है, भाई बंधु कुछ लोगों से है जो शायद राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं या शायद उनको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो समझना चाहिए कि जो भारतीय शब्द है इंडीड वास्तव में ये भारत के भिन्न भिन्न भाषाओं में पाया जाता है और वास्तव में ये भारतीय शब्द तो भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम सब तो संस्कृत से निकल कर आए गए शब्द हैं। संस्कृत के शब्द बंगला में पाए जाते हैं, तेलुगु में पाए जाते हैं, तमिल में पाए जाते हैं, मलयालम में पाए जाते हैं, कन्नड़ में पाए जाते हैं, मराठी में पाए जाते हैं, हिंदी में तो है ही। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी कारण से बोले थे कि भारत की भाषा तो संस्कृत होनी चाहिए। उन्होंने कहा था ये संविधान सभा में बात। तो जो लोग कहते हैं कि संस्कृत निष्ठ है उनको जाकर डॉक्टर अंबेडकर की भावना को देखना चाहिए। तो और संस्कृत शब्द है, संस्कृत तो जननी है, तमाम भाषाओं की जननी है, तमाम शब्द मिलते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संतोष कुमार वर्सेस MHRD में क्या कहा? कहा कि संस्कृत किसी हिंदुओं की भाषा नहीं है, संस्कृत किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं है, संस्कृत भारत की धरोहर है। इट इज ए लिगेसी ऑफ इंडिया।
जस्टिस हंसारिया ने क्लियर शब्दों में कहा, आप उठा करके कभी निकाल करके देखिए, आपको आश्चर्य लगेगा कि संस्कृत लैंग्वेज के बारे में 2 पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा है कि संस्कृत इज ए लिगेसी फॉर इंडिया. Indians have their ancient roots in Sanskrit languages. हमारे जो एंशियंट रूट है संस्कृत लैंग्वेजेस में है, तो संस्कृत किसी एक हिंदुओं की भाषा कैसे होती है? भारत की अपनी भाषा है, भारतीय संस्कृति का पार्ट है. और भारत के संविधान में आर्टिकल 351 में क्या कहा गया है? 351 में कहा गया है कि संस्कृत से हमें शब्दों को लेना है. वी हैव टू टेक वर्ड्स फ्रॉम संस्कृत. व्हाट द पार्लियामेंट हैज डन इज टेकन वर्ड्स फ्रॉम संस्कृत. सारे नहीं ले लिए हैं, 2-3 शब्द ले लिए हैं. दे हैव टेकन, दैट इज द कमांड ऑफ आर्टिकल 351. दैट इज द कमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, which after hot discussion has ultimately settled that all languages are our Indian languages. सभी भाषाएं भारत की अपनी भाषा हैं. We must love every languages, and every Indian must know at least 3 languages. And if God gives me birth, ना तो हम कामे राज्यम ना स्वर्ग ना पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम का प्राणा नासार्थी नाशनम. पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि मुझे तो ना राज्य की कामना है, ना धन की कामना है, मुझे तो यहाँ फिर से एक जन्म दे दो. मैं इसमें जुड़ूंगा कि मुझे जन्म देना तो किसी साउथ इंडिया में जन्म दे देना, मुझे बंगाल में जन्म दे देना, मुझे मणिपुर में जन्म दे देना, ताकि मैं ऑटोमेटिक 3 भाषाएं जान लूँ. खेद है कि आज मैं तीसरी भाषा नहीं जानता, क्योंकि सरकारों ने तीसरी भाषा की पॉलिसी को ठीक से लागू नहीं किया. जो बहुत पहले राजीव गांधी ने जो सपना देखा था उसको हम लोगों ने तोड़ दिया, वरना भाषा की आज दिक्कत नहीं रहती. सरकार को फिर से इस पर सोचना चाहिए. अगला जो बिंदु है इसमें वो ये है कि इस प्रकार जो ये भाषा है, जो शब्द लिए गए हैं, ये वास्तव में नेशनल इंटीग्रेशन के द्योतक हैं, क्योंकि सभी जगह पाए जाते हैं. ये कॉलोनियल लैंग्वेज से नहीं ले रहे हैं हम. फ्रांस ने तो निकाल के लॉ बना के अलग कर दिया. हम लॉ बना के अलग नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस में इसको थोड़ा अलग करना चाह रहे हैं. कोई अंग्रेजी का विरोध नहीं है. अंग्रेजी भाषा को ऐसे ही पढ़ना है जैसे फ्रेंच है, जैसे तमिल, जैसे स्पेनिश है. हम में से कई लोग हैं जिनके गार्जियन हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे. मेरा बच्चा स्पेनिश पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब थोड़ी है कि एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लैंग्वेज हम ये करना शुरू कर दें. जिसको न निज गौरव और निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु है और मृतक समान है. मैथिली शरण गुप्त जी ने ये बात कही है. द पर्सन who does not respect, does not honor his own language, his own culture, he is as good as animal, as good as a dead person, a walking carrion. So let us think about this, that right from Subramaniam Bharati to Rabindranath Tagore to Farishnath Renu or Maithili Sharan Gupta or Premchand, many, they all worked for India in their own languages. Now, let us see what the 4 things have been done. Name is Indian. भारतीय नाम है ये तो. Let us be proud of it. That does not mean we are closing the doors of English. No, never. That should not be closed. आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता. सारी दिशाओं से सभी ज्ञान हमारे पास आना चाहिए. हमें कोई क्या सिखाएगा? हम तो सारी दिशाओं से ज्ञान अपने यहां लेने वाले लोग हैं. महात्मा गांधी ने क्या कहा? मेरी विंडोज खुली रहेंगी. माई विंडोज वुड बी ओपन, but my foot will be so strongly stuck to the ground. ग्राउंड ना भूल जाए. आज ग्राउंड भूल रहे हैं हम कि नहीं भूल रहे? हमारे घर में बच्चा हमारी भाषा बोलता है, याद करिए. क्या पंजाबी बोलता है? पंजाब से आप आए हैं तो क्या वो मगही बोल रहा है बच्चा हमारा? क्या वो बंगला बोल रहा है बच्चा हमारा? क्या वो तमिल तेलुगु बोलता है? वो हिंदी और अंग्रेजी तो बोल रहा है, अपनी भाषा नहीं बोल रहा है. गवर्नमेंट हैज डन ए ग्रेट जॉब going back to the roots, securing our culture. This is right of every state to secure their culture. This is provided in the United Nations document. United Nations has also said every citizen, every state has right to secure their own languages. The languages are dying. It is more inclusive also. Second reason is it is more inclusive because it is easily understandable. 20 crore people out of 140 crore people, 20 crore people or maybe 30 crore people may understand English. What about others? These words are easily understandable by others. Bharatiya word is easily understandable.
हम जिस क्षेत्र में हैं शायद हमको लगता हो अजीब सा, पर जाकर जब बात करिए, मैंने अपनी माताजी से पूछा, शी इज ए PhD इन हिंदी, मैंने पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हें ठीक लगता है, सरल लगता है? बोले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से लगता है कि ये नागरिक सुरक्षा के लिए बना है। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो ऐसा देखने में लग रहा है ये कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की अपराधियों के लिए केवल बनी है। CRPC क्या केवल अपराधियों के लिए बनी है? विक्टिम के लिए नहीं बनी है। और अपराधी भी क्या, अपराधी का मतलब क्या है कि उसको सुधार का हक नहीं है। नागरिक सुरक्षा एक सभी नागरिकों के लिए, कितना बढ़िया नाम दिया। सी द फिलोसॉफिकल चेंज द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट वांट टू मेक। न्याय, जस्टिस की बात करेंगे, पुलिस अधिकारी, प्रिजन ऑफिशियल्स, जजेस, उनको दंड नहीं देना है, उनको न्याय देना है। उनको एक्यूज्ड आएगा उसको भी न्याय देना है, विक्टिम आएगा उसको भी न्याय देना है, वकील है उनको भी साथ भी न्याय की बात करनी है। ये केस जीतने और हारने का मैटर नहीं है, ये किसी को केवल दंड देने का मैटर नहीं है। दंड तो उसका एक पार्ट है, पर दंड सेंट्रल फिगर नहीं है, न्याय सेंट्रल फिगर है। भारतीय होना चाहिए उसे। नागरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम, नागरिक की सुरक्षा का काम है, पुलिस का काम नागरिक सुरक्षा है, अपराधियों को पकड़ना काम नहीं है। This has become more inclusive in nature, and I really commend this government and the parliament and all those who support it. New name is more Indian because it is from Sanskrit origin also. Constitution का mandate है 351 का. Dr. Ambedkar had a dream and many other people have dream. So, and decolonization. This is 4 important things that has been done because of this name change. But there are other points also. वंदे मातरम तो पढ़ा होगा हमने, जनगण मन भी पढ़ा होगा, जय हिंद भी हम बोल देते हैं। अब भैया एक दक्षिण भारत का आदमी अगर आकर के अगर इन राजनीतिक दलों की बात मान ले या इग्नोरेंट लोगों की बात मान ले, वो कहेगा नहीं भाई हम तो जय हिंद नहीं बोलेंगे, जय हिंद तो हिंदी का शब्द है। ये जो नारे हैं ये जय जवान जय किसान, ये क्या, ये हिंदी के हो गए? तुम मुझे खून दो आजादी मिलेगी, ये क्या हिंदी के नारे हो गए? ये सारे देश का नारा है। ये अंग्रेजों भारत छोड़ो क्या हिंदी का नारा है? ये सारे देश का नारा है। दक्षिण भारत से भी नारे आए होंगे, मैं नहीं जानता हूं, अलग बात है, पर उसको फॉलो कर रहे हैं लोग, दूसरी भाषा के लोग फॉलो कर रहे होंगे, वो हमारे अपने हैं। हम वणक्कम कहते हैं, हम जोहार कहते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं वंदे मातरम और जनगण मन लिखो क्या है। ये जनगण मन अधिनायक जय है, ये जो सारी बात कही गई है, क्या कोई व्यक्ति कह सकता है जो बंगाल का है, कोई दक्षिण भारत का कोई ऐसा पॉलिटिशियन ऐसा कह देगा भाई अब तो हम नहीं, ये तो भाई ये तो हिंदी भाषा में है, हम नहीं गाएंगे, हमें तो अपनी भाषा का चाहिए? सारे देश की बात हो रही है भाई। संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में ऊपर क्या लिखा है? हमें संविधान की वैल्यू को फॉलो करना है, इसके आइडियल को फॉलो करना है। संविधान ने कहा है, बात कही है कि संस्कृत से लेंगे और हिंदी का स्पेशल स्टेटस है, बाकी सभी भाषाएं भी बराबर है। पर हिंदी के साथ क्या है कि वो ज्यादातर लोग बोलते हैं, बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं, तो उसका लोकतांत्रिक हक होता है। तो ये आइए यहां दूसरा देखते हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, संस्कृत में आ गया, ये तो ठीक है। आगे इसमें देखिए क्या लिखा है, अबला केनोमा ये तो भले बंगला में है। तो बंगाल के जो लीडर बोल रहे हैं, अब कोई कहे मैं कहूं कि भैया ये तो वंदे मातरम तो बंगला में कहा गया है, बंगला के शब्द आ गए हैं, मैं नहीं बोलूंगा। तुम्हारी प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे बंगला का है। नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम, हमारे प्रियम्बल में बात कही गई है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हमने सोलोमनाइट किया है, हमने प्रतिज्ञा ली है 26 नवंबर 1949 को, 26 November 1949 we have made a solemn promise to each other, to this country, that we will keep this country as an integral part, integral country। बाद में इंटीग्रिटी को जोड़ा भी हमने। ये इंटीग्रिटी की बात हो रही है हमारी, तो ये भाषा इंटीग्रिटी का बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए ये कहना कि इसमें हिंदी को थोप दिया जा रहा है, दिस इज कंप्लीट इग्नोरेंस, कंप्लीट इग्नोरेंस। लेट अस नॉट बी कैरिड अवे by these type of arguments, because some of these arguments are because of ignorance and some of these arguments are because of political, or to take political mileage. Now coming to the pure legal issue, it is argued
that Article 348 is violated because of these names. And I'm sure some of you must have heard this argument. I'm just finding names of many teachers here, that is very good, but I'm not yet find any questions. Oh my God. Great intellectual people are here, they are not asking any question. Please post the question, dear friends. 348. What does 348 say? 348 says that authoritative text of the legislation passed by the parliament and parliament shall be in English unless a law is made by the parliament. जो authoritative text होगा वो इंग्लिश में होगा, and therefore there are petitions filed in Madras and Kerala, and the Chief Justice also took this type of such a weak argument. ये authoritative text के लिए 348 में बात कही गई है. चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट द करंट चीफ जस्टिस, बिकॉज करंट चीफ जस्टिस मस्ट बी ऑनर्ड. ही इज ए ग्रेट विजनरी. He knows what national integration means, and in his regime, all languages are flourishing like anything. The Supreme Court has translated more than 30,000 judgment not in Hindi, but in Asamiya, but in other language, but in Gujarati, and he has created a separate window, vernacular language window in the Supreme Court website. Keshavanand Bharati has been uploaded on the Supreme Court website in Hindi. He is the visionary. Chief Justice Chandrachud. We need people like Chief Justice Chandrachud. So let us come back to 348 argument. 348 से कि जितनी भी संसद में कानून प्रस्तुत किए जाएंगे, बनेंगे, उसका ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट अंग्रेजी में ही होगा. चलो भाई, बहुत अच्छी बात है. और इसलिए कहा गया ये भारतीय न्याय संहिता लिख दिया, ये अंग्रेजी में नहीं है, ये तो हिंदी में है. पहली बात तो हिंदी में नहीं है, मैं कह रहा हूं भारत के कई भाषाओं में है, मेनली संस्कृत में है. और दूसरा क्या है कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये हिंदी में है और इसकी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट नहीं है. देयरफॉर इट वायलेट्स आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So let us examine this argument. But before I examine this argument, I will respectfully take the name of some of my students who have given these arguments to which I am convinced. Rohan, who passed from ILI, currently he is in Delhi University. Himanshu, who is a student passing his ILI LLM. Yugal, who has also passed from ILI and preparing for other services. Arun, who has also passed from ILI and currently in Delhi University. These four bright child, besides others, they have given me some arguments. It's my duty to recognize these young talent. The argument is use of terms Sanad and Raj Pramukh is used in the parliamentary, in the constitution itself. Our constitution uses the word Sanad and Raj Pramukh in the authoritative text. So the word should not be surprised. There are other central acts which use the word like Prohibition of Benami Transaction Act. Unnamed कर लिख सकते थे बेनामी को, उसकी स्पिरिट नहीं आती भाई. बेनामी कहने से और अननेम्ड कहने से स्पिरिट नहीं आती. आप न्याय कहते हैं और जस्टिस कहते हैं, दोनों में फर्क होता है. आप भारतीय कहते हैं और इंडियन कहते हैं, दोनों में फर्क होता है. वो स्पिरिट नहीं आती वो बात को कहने से. वो स्पिरिट, संसद वो स्पिरिट लाना चाहती है सब में, इंडियननेस की स्पिरिट ला चाहती है हमारे पूरे देश के लोगों में. बेनामी ट्रांजैक्शन है. आधार, व्हाट इज दिस आधार? क्या आधार का मतलब है भाई? अब किसी कोई चैलेंज कर दे आधार वर्ड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या पहले ऐसा नहीं हुआ है? आज कभी कभी कुछ विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं, कभी कभी कुछ और लोग भी बोल रहे हैं. सुनिए जरा सा पहले नाम आप. दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955, इसका इंग्लिश नाम कर दिया जाए, दरगाह का नाम बदल दिया जाए, ख्वाजा का नाम बदल दिया जाए, साहब का नाम बदल दिया जाए, जैसे अनुराग द्वीप का नाम बदल के द लाइट ऑफ लव कर दिया जाए. दूसरा देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक्ट, साउथ इंडियन हिंदी प्रोपोगेशन और एंड देन कुछ एक्ट ऐसा तो रख सकते थे, क्यों नहीं रखा इसको?
छोड़ दीजिए, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का तो नाम सुना है हमने। विच गवर्नमेंट हैज पास्ड इट? हु वेर इन पावर? 2008 में पावर में कौन था सेंटर में? मैं उसमें डिटेल में नहीं जान सकता, आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल। 2013 में जब लोकपाल लोकायुक्त एक्ट आया था, कौन था पावर में? नई गवर्नमेंट तो 14 में आई है। आपने उस समय तो कानून पारित किया हिंदी नाम से। टुडे गुड वॉइस दे आर टेलिंग ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी में है, आ गया है, इंग्लिश में नहीं है। पंचायत राज एक्ट 1993 में पास हुआ, कौन था भैया पावर में? This flimsy argument, and I do not know whether the former Chief Justice is completely unaware of. He was there. He was indeed in the system, and he is not. There were other judges also of the High Court. They were making these excuses. I understand कि उनको बहुत सोचने का मौका नहीं मिला। वो तो कोर्ट में अपना फंसे रहते हैं, कोर्ट के काम में बहुत पढ़ने का मौका नहीं मिलता। वकील साहबान आते हैं, एक बात बताते हैं, दूसरी बात बताते हैं, फिर अभी वो आईपीसी पे बात करते हैं, कल वो किसी लॉ पे, परसों किसी लॉ पे बात करते हैं। अरे भैया, तुम किसी लॉ के टीचर से बात कर लेते, वो बैठ कर रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, वो बताते हैं आपको कि आप जब स्टेटमेंट देने जा रहे हो पब्लिक फोरम में, थोड़ा सा जिम्मेदार होकर स्टेटमेंट देना है। ग्राम न्यायालय एक्ट करके है कि नहीं है, लोकपाल एक्ट है कि नहीं है। हाँ, अब अधिनियम वर्ड एक आ गया, ये बात से हम सहमत हैं। संहिता वर्ड आ गया है, ये बात से सहमत है। तो जब ग्राम न्यायालय हो सकता है तो अधिनियम क्यों नहीं हो सकता भाई? पंचायत राज अधिनियम, पंचायत राज का नाम क्या कर दें? रूल ऑफ लोकल गवर्निंग बॉडी एक्ट कर दें। पंचायत राज हमारी कब की व्यवस्था है, कोई आज की व्यवस्था थोड़ी है। महात्मा गांधी का सपना है ये, और बहुत पुरानी व्यवस्था है। मैं नए कानून में नहीं जा रहा हूं, जन विश्वास अधिनियम। तो ये कहना कि ये वायलेंस ऑफ आर्टिकल 348 है, आई डोंट थिंक इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, एंड आई थिंक द कोर्ट विल डिसमिस दिस पिटीशन एज अर्ली एज पॉसिबल। So I just finished this part of discussion. Authoritative text को लेकर अरुण ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि if I can go technical, वैसे ये आर्गुमेंट मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग नहीं है हमारी ओर से, लेकिन अगर आप टेक्निकल आर्गुमेंट हिलना चाहते हैं तो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट का मतलब क्या है? तो एक तो मेन टेक्स्ट हो गया, जिसको कि हम ऊपर का नाम कहते हैं, जिसको आप शॉर्ट नेम भी कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट नेम हो गया। ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट तो बाकी के लॉज हैं जो सेक्शन 1 से शुरू होते हैं, प्रियम्बल से शुरू होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम दैट। वो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट तो अंग्रेजी में ही है, उसका हिंदी वर्जन आ गया है। तो अब क्या प्रॉब्लम है? 348 कहता है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द बिल जो इंट्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन इंग्लिश। इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हो गया है, पास हो गया है। BNS, BNSS, BSA, द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इज स्टिल इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसका टाइटल केवल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, कॉलोनियल लैंग्वेज में नहीं है। ये बात समझ में आती है। तो ये हमें लग रहा है कि ये एक अच्छा आर्गुमेंट है ये, और जो टेक्स्ट है